इट इज लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर में इससे पता लग रहा है लेंस को बनाने वाला फार्मूला। दिस फार्मूला इज यूज्ड टू डिजाइन द लेंस ऑफ रिक्वायर्ड फोकल लेंथ। Here some assumptions are also taken for derivation of the lens maker formula. It is the lens is taken thin. इसका जो assumptions लेते हैं, what we assumptions we take, assumption lens is thin. Object is taken point object. Object is point object. Point object. And rays are paraxial. Rays are paraxial. That is, they make a smaller angle with the principal axis. That is, they make a smaller angle with principal axis. They make a smaller angle with principal axis. तो ये हमारे पास जो है स्मॉलर एंगल बनाते हैं। तो ये चीज़ हम इतना कंसीडर करके ये इतना अजम्पशंस लेते हैं, ये अजम्पशंस। नाउ वी ड्रा द डायग्राम हियर। यू सी दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड when light incident at the surface ABC. When we draw the normal from C1, light bends towards the normal. In absence of this ADC, अगर ये सरफेस न प्रेजेंट रहे, लाइट सीधे जाकर के आई डैश पे मिलेगी। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सरफेस ADC, इफ नॉर्मल इज ड्रॉन फ्रॉम C2, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है और इस सरफेस का C1। यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रा किया जाए तो यहाँ से लाइट सीधे में जाकर के बेंड्स अवे, डेंसर से रेयर में जा रही लाइट, तो ये बेंड्स अवे, इट मीन्स इट इज बेंड्स अवे मीन्स फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द आई। और इसको सिंपल फॉर्म में अगर बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट इंसिडेंट passes from rare medium to denser medium। ध्यान रखना ये C2 है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C1 है। ये ध्यान रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का है ABC का, इस रेडियस को हम लिख सकते हैं R2 और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के रेडियस को हम यहाँ से लिख सकते हैं R1। ये ध्यान में रखना कि R2 एंड R1 तमाम रेस के कारण ये कॉम्प्लेक्स हो गया, तो सिंपल फॉर्म में इस तरह से कर सकते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये, लाइट इंसिडेंट हियर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जिस मीडियम में लेंस रखा है रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। हियर यू सी व्हेन लाइट पासेस from rare to denser, here it bends in absence of this ADC surface, the image would form at I dash। अगर ये नहीं होता तो इस पर बनती, but in presence of the surface ADC, the final image is formed at I, that is at a distance of B। Here this distance is B dash। So this is the diagram. Now we have it as a μ1 and μ2. This is the refractive indices of the rare medium and the denser medium. Now using the refraction formula, refraction at the, now we will write refraction at the surface ABC.
refraction at the surface ABC. Refraction at the surface ABC. Here light passes from the point object. Note down, refraction at the surface ABC. Point object is placed at O. When light passes from this point object, incident at the surface ABC. In absence of the surface ABC, the image would fall at I dash. Then using the refraction formula, mu2 upon v dash, ध्यान में रखना, since light passes from rare medium to denser medium, तो रेयर से डेंसर में हमने भी क्या पढ़ा था, mu2 upon v minus mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon r. So mu2 upon v means v dash, minus mu1 upon u, it is equal to mu2 minus mu1 upon r1. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इक्वेशन 1 हो गया. एंड अगेन अभी हमारे पास हो गया, दिस इज द mu2 upon v dash minus mu1 upon u, it is equal to mu2 minus mu1 upon r1. ये इमेज हमारा I dash पर बनती. Here refraction through ADC, refraction through ADC. Here, in presence of the surface ADC, light passes from denser medium to rare medium. ध्यान रखना, in presence of the surface ADC, light passes from denser medium to rare medium. And in this case, this image I dash will act as a virtual object. In this case, the image I dash acts as a virtual object for the surface ADC, and the final image is formed at I. Note down. Note कर लो. Refraction through ADC due to presence of the surface ADC, light passes from denser medium to rare medium. Light passes from denser medium to rare medium. In this case, the image I dash, acts as a virtual object. I dash acts as a virtual object for the surface ADC, for the surface ADC, and the final image is formed at I, at a distance v from the optic center. At a distance v, Sir, the final image it is formed at I, at a distance v from the optic center. Therefore, by the refraction formula, mu1 upon v, उसमें हमने बताया था mu1 mu2 इंटरचेंज हो जाता है. mu1
v dash, here mu1 upon v, ध्यान में रखना। अब हमें जरा देखना mu1 upon v फाइनल हमारे पास यहाँ बन रहा v डैश नहीं होगा, mu1 upon v माइनस mu2 upon u हमारे पास अब ये है, दैट इज v डैश, इट इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2 अपॉन r2। हमने अभी सरफेस लिया है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज माइनस mu2 माइनस mu1 अपॉन r2, दिस इज इक्वेशन 2। mu1 अपॉन v, हमने बताया mu1 mu2 इंटरचेंज हो जाता है, इसके पहले जब हमने रिफ्रैक्शन फार्मूला पढ़ा था, mu1 अपॉन v माइनस mu2 अपॉन v डैश, इट इज इक्वल टू u के प्लेस पे v डैश नहीं है, ध्यान रखना, इट इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2 अपॉन r2, इट इज माइनस टेक आउट कॉमन, mu2 माइनस mu1 अपॉन r2, इक्वेशन 2। Now, is it clear to all? Now adding 1 and 2, adding 1 and 2, here this is 1 and this is 2. Adding 1 and 2, 1 plus 2. So what we get? mu2 upon v dash minus mu1 upon u plus mu1 upon v minus mu2 upon v dash. This is equal to mu2 minus mu1 upon r1 minus mu2 minus mu1 upon r2. mu2 upon v dash. Yes, it is take out common, mu2 minus mu1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. And here mu2 upon v dash, this cancelled out. So here we can write here mu1 take out common, mu1, 1 upon v minus v 1 upon u, it is equal to mu2 minus mu1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. 1 by f. Here you see mu1 को पहले जाओ तो वैल्यू हो जाएगी 1 upon v minus 1 upon u, mu2 minus mu1 upon mu1, it is 1 by r1 minus 1 by r2. Here, when the object is at infinity, image will be far at the focus. When लिखेंगे when u is equal to minus infinity, then f is u v is equal to f, then v is equal to f. तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 1 upon f minus 1 upon minus infinity, it is mu2 upon mu1 minus 1, it is 1 upon r1 minus r2. ये वैल्यू हो जाएगी 1 upon infinity की वैल्यू 0, वन अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू 0, therefore 1 upon f it is equal to mu2 upon mu1 upon minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. And here this also can be written as, this is your Lorentz-Becker formula.
when light passes from air to denser medium, when rare medium is air or vacuum, when a rare medium is air or vacuum, then mu1 it is equal to 1 and mu2 it is equal to u, mu ले सकते हैं. Then this formula converted as mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. mu2 हमारा mu लेंगे, mu रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी अगर ग्लास है तो a mu g लिख सकते हैं ग्लास. तो लेकिन वो जो दिया फार्मूला हुआ तो ऊपर रखा है 1/b minus 1/u है, क्योंकि रियल फार्मूला अभी पढ़े कहाँ, तो लेंस आएगा ना, अभी तो नहीं पढ़े. ये जो ऊपर में भी लिखवाए थे 1/b minus 1/u, ये तो f तब ना आएगा जब इन्फिनिटी का रखेंगे. हाँ, तो इसीलिए फार्मूला बन गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज रिक्वायर्ड वेक्टर. पर्टिकुलर केस है ये पर्टिकुलर केस हो, पर्टिकुलर केस से हमारे फोकस का पता लग जा रहा है ना. नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं 1/b minus 1/u को लेंस के लिए डिराइव्ड फार्मूला. लेकिन हम यहाँ पे स्पेशल केस के लिए, स्पेशल केस से हमें फोकल लेंथ पता लग जा रहा है, रिक्वायर्ड फोकल लेंथ. अगर हमें डिफरेंट मटेरियल का एक्चुअली लेंस बनता है, सब ग्लासे का नहीं बनता, सबका अलग अलग बनता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो उस अनुसार हम डिजायर्ड फोकल लेंथ का हम लेंस बना सकते हैं. पहले था जैसे ग्लास और ग्लासेज में अलग है लेंस, आजकल तो ऐसे भी लेंस बनते सीधे आंखें में डाल देते, आंख में ही पड़ा रहता है, तो वो तो ऐसा वो ग्लास का थोड़ा बनता है. तो हमारे अंदर आंख का जो लेंस है वो प्रोटीन का बना होता है, आंख के अंदर जो लेंस है वो प्रोटीन का बना होता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा. तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है. इसी नाते मटेरियल का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो, तो उसके अनुसार हम चेंज कर सकते हैं. उसके अनुसार हम कितना पतला बनाना, किस फोकल लेंस का लेना है, हम इसको डिसाइड करते हैं. तो ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला. इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है. हमारे यहाँ तो एग्जाम में भी आया था कि इफ equiconvex lens, you can note down a question. If a equiconvex lens, focal length 15 centimeter, if an equiconvex lens, focal length 15 centimeter is cut into two equal halves, मतलब ये इस फॉर्म में है, इसको ऐसे काट दिया गया वर्टिकली, कट इनटू टू इक्वल हाफ्स. देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ? व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ? हर हाफ पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा? सिंपल सी बात कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को हम वर्टिकली ऐसे काट देते हैं तो एक पार्ट का फोकल लेंथ का अभी 15 सेंटीमीटर है, तो दूसरे पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा? प्लेन वाले का इंफिनिटी मिलेगा 8 और इस वाले का 15 फॉर्मूला डालेंगे. फॉर्मूला डाल दो. इस वाले का 15 रहेगा, 15 रह जाएगा. समझ लो, एग्जाम में पूछ करके बड़ा बेइज्जत करता है. ध्यान रखो, आज से भूलना नहीं. अगर ये 15 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. अब हमारे पास इसका मान लेते हैं, हमारे पास यह इट इज 15 सेंटीमीटर. ये मान लेते हैं इसका यह डैश हमें निकालना. फॉर द लेंस गिवन R1 it is equal to R and R2 it is equal to minus R. ध्यान रखना, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, तो इधर का नेगेटिव होगा ना, इसका पॉजिटिव हो गया.
R1 is R and R2 is minus R. So 1 upon F लेंथ है, इसको ध्यान में रखना, μ2 upon μ1 को 1 μ2 कहते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट ग्लास है, इसको हम डायरेक्ट म्यू कह सकते हैं, ए म्यू जी या डायरेक्ट म्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यू हम लिख लेंगे इसमें 1 upon F इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 and 1 upon R minus 1 upon minus R. Is it clear? Equiconvex मतलब R1 R2 बराबर, ध्यान रखना। So this is mu minus 1 upon R plus 1 upon R, 2 upon R, ऐसा समझ में आ रहा होगा। So this is 1 upon F, it is equal to this much. Therefore 1 upon F mu minus 1 upon R into 2, या ये कह सकते हैं कि implies that 1 upon 2F it is mu minus 1 upon R, इसको इक्वेशन 1 करो। 1 upon 2F is equal to mu minus 1 upon R. When it is cut into two equal halves, तब देखो क्या होता है। When it is cut into two equal halves, what we get? Here इसका refractive R1 it is equal to R and R2 it is equal to minus infinity, इधर वाला सरफेस प्लेन का क्या होता है, इन्फिनिटी। तो 1 upon F dash it is equal to mu minus 1 और mu minus 1 upon R minus 1 upon minus infinity. Is it clear to all? R1 की R केवल R n होगा, इसका इन्फिनिटी होगा। अब देखना होगा क्या, 1 upon F dash it is equal to, हाँ तो म्यू माइनस 1 अपॉन R हुआ ना, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करोगे, इस म्यू माइनस 1 अपॉन R की जगह यही पुट कर दोगे 1 अपॉन F डैश। तो देख लो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 what we get, 1 upon 2F it is equal to 1 upon F dash. So F dash it is 2F और F is 15. So value therefore F dash is equal to 2 into 15, it is 30. कहने का मतलब इस तरह से पूछा जाता है कि अगर लेंस काट दिया जाए इक्वल हाफ्स में तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बढ़ेगा और ट्वाइस हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो इस तरह के क्वेश्चंस 1 2 मार्क्स में दो बार सर, दो पार्ट में काटे तो 2 गुना हो जाएगा, 3 पार्ट में काटेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। कैसे 3 पार्ट में कहां से काटोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल दोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नहीं बदलेगा। अरे जब भी काटोगे प्लेने में नहीं काटोगे, काट के उड़ा दोगे खंड खंड। ऊपर से काटोगे कभी चेंज नहीं होगा। ये भी पूछता है एग्जामिनर, सुनो अगर यहाँ से काट के फेंक दिया जाए तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इमेज? व्हाट इज इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ? नो इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ डज नॉट चेंज, बट इमेज, व्हाट इज इफेक्ट ऑन इमेज? इमेज हाँ डिम बनेगी, फुल इमेज विल बी फॉर्म बट द लेस ब्राइटर। ब्लर तो नहीं होगी क्योंकि अब तक इमेज, अब तक जो लाइट जा रही है ऑल पार्ट से, अब ये पार्ट तो कट गया, थोड़े पार्ट से ही तो जाएगी तो हल्का बनेगा। बात समझ आ रही है? हाँ तो ये सब भी पूछा जाता है एग्जामिनर। ये भी पूछता है एग्जामिनर कि अगर लेंस को पानी में डाल दिया जाए व्हाट इज इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ? चलो क्वेश्चन करो, नोट डाउन। इफ ए लेंस refractive index 1.6, if a lens a refractive index 1.6, clear, and focal length is 20 centimeter
and focal length is 20 centimeter is immersed in a liquid of refractive index 1.3, what will be the focal length? What will be the focal length of the lens in the liquid? What will be the focal length of the lens in the liquid? मतलब एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एयर में है, हवा में, और उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये म्यूजी है ग्लास, उसका 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसे अगर लिक्विड में डाल दिया जाता है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। इज इट क्लियर? तो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द लिक्विड? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा? बस शुरू हो जाओ, लेंस लेकर फार्मूले पर बनेगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 1/f एयर की बात कर रहे हैं। इट इज ए म्यू जी माइनस 1 कितना आएगा? 2.6 आएगा into 20। इतना ब्लंडर बोलते 52 आएगा सर। हाँ 52 आएगा। आवाज देखिए क्या 52 सेंटीमीटर आएगा। हाँ ठीक, यस सर। ठीक से करो, आएगा, एकदम आसान है। देखो 1/20 है, देख लेना। इट इज 1/20 और ए म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। देख लेना कि 0.6 होगा तो 1/20 इट इज इक्वल टू 0.61 है। 0.6 का मतलब 6/10 और ये वैल्यू हो जाएगी और 1/R1 माइनस R2। 10 को ऐसे चाउट काट भी कर सकते हो, 1/12 हो जाएगा ना। तो 1/12 इज इक्वल टू 1/R1 माइनस R2। अब जब यह लेंस को किस में डाल दिया जाएगा? पानी में, लिक्विड में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड होगा। अब हमारे पास मान लेते हैं कि इट इज FL फोकल लेंथ लिक्विड में, इट इज इक्वल टू, हम लिखते हैं क्या? WL म्यू जी। ध्यान दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखना 1/FL की वैल्यू हमें निकालनी ही है। एल म्यू जी को लिख सकते हैं ये म्यू जी अपान ये म्यू डब्ल्यू एल ये पहले पढ़ाया था, और -1 और 1/R1 माइनस 1/R2 को लिख सकते हैं 1/12। सो हियर इट इज 1/12। तो देख लेना 1/FL इट इज इक्वल टू ए म्यू जी 1.6 अपान 1.3 माइनस 1 और 1/12। ये देख सकते हो 16/13, 16 माइनस 3/13 हो जाएगा ना, इंटू 1/12 3 जा, तो 1/FL हो गया, और 1/FL इज इक्वल टू 1/52। तो FL की वैल्यू आ जाएगी 52 सेंटीमीटर। ये भी देखो फोकल लेंथ बढ़ गया कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि अगर पानी में डाल दिया जाए, एग्जाम में पूछता है अगर लेंस को लिक्विड में डाल दी, पानी में डाल दिया जाए सीधे, कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, एक्चुअली वास्तव में होता क्या है कि इसकी बेंडिंग कैपेसिटी घट जाती है। जब हम लिक्विड में लेते हैं, इसको एयर में लेते हैं, तो इसकी जो बेंडिंग कैपेसिटी होती है एयर के रेस्पेक्ट में होती है, तो ये जो होती है बेंड करने की ताकत, ये लाइट को जल्दी मोड़ देता है। लेकिन जब पानी में डाल दिया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में होता है, तो उतनी बेंडिंग कैपेसिटी नहीं रह जाती, ये मोड़ता है थोड़ा दूर ले जाकर, तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है। इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। ऐसा भी पूछा जाता है कि इफ ए लेंस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड whose refractive index is
greater than the refractive index of the lens, then what will be the nature of the lens? अगर एक लेंस को, हाँ, that nature will be changed. Try to understand. इफ ये भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं. अगर एक लेंस को ऐसे लिक्विड में डाल दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द लेंस. अगर कॉन्वेक्स लेंस डाला जाएगा तो इसी फार्मूले से हम लोग निकालते हैं. ध्यान में रखना, जब उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल देंगे ऐसे, तो हमारे पास मान लो लिक्विड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर होगा तो वैल्यू हो जाएगी W म्यू डी -1 और A1/R1 -R1/R2 तो बना रहेगा. तो ये वैल्यू इसको लिखेंगे A म्यू जी अपॉन A म्यू W की जगह लिक्विड ले लो A म्यू W A म्यू L. तो ये ध्यान में रखना कि वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, इट इज, हाँ, ये निगेटिव आ जाएगा और ये हमारे पास मिल जाएगा A म्यू जी माइनस A म्यू L. अब देखो निगेटिव हो गया ना, अपॉन A म्यू L 1/R1 -R2 और ये 1/FL. तो ये जो फार्मूला हमें बताता है कि FL इज लेस देन 0, निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक हो गया. इज इट क्लियर? तो FL इज निगेटिव, और निगेटिव किसका होता है? कॉन्केव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है. तो अगर तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इफ लेंस इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड whose refractive index is greater than the refractive index of the lens, then the nature of the lens will change. It is convex, it will be converted into concave nature. और लेकिन अगर कॉन्केव है तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, भी ध्यान में रखना. हाँ, लेकिन और एक चीज है कि if it is immersed in a liquid whose refractive index is equal to same as the, तो ये नहीं, तो ये प्लेन शीट बन जाएगा. प्लेन मिरर नहीं बनेगा, शीट बनेगा. रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग नहीं. क्योंकि इफ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इफ ए लेंस इज इमर्स इन ए लिक्विड whose refractive index is same as the refractive index of the lens, then what will be the nature of the lens? The nature of the lens will be behave as a plane sheet. और प्लेन शीट में लाइट जाती है तो सीधे पार हो जाती है. तो एक बार 3 नंबर में बोर्ड में आया था, 3 मार्क्स में बोर्ड में आया था क्वेश्चन. 3 केस दिया था कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, अगर उसे ऐसे लेंस में डाल, ऐसे लिक्विड में डाल दिया जाए कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे अधिक है. अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से अधिक है, इट विल बिहेव एज ए कॉन्वेक्स लेंस. और यहाँ पे पैरेलल बीम अगर गिरेगी तो इसी तरह का ये बनेगा. लेकिन फर्स्ट केस तब है जब μ2 इज ग्रेटर दैन μ1. ये जो है μ1 है तो ये μ1 है और इसका μ2. सेकंड केस में पूछा था, 3 रे डायग्राम बनाना था, 3 मार्क्स का बोर्ड में आया था. फर्स्ट केस हो गया. सेकंड केस पूछा गया था इफ μ2 इज इक्वल टू μ1, then what will be the nature of the lens? तो लेंस कैसा रे डायग्राम बनाना था? It will behave as a plane sheet. और ऐसे जाएगा ये प्लेन शीट में रे सीधे निकल जाते हैं ना, इट विल behave as a plane sheet. और इसी तरह से पूछा था कि अगर ये ऐसे लिक्विड में डाल दिया जाए कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही इससे अधिक हो, इट मीन्स here μ1 is greater than μ2, मतलब इससे अधिक हो जाए, then what will happen in this case? and here डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा. और हमने अभी देखा था डाइवर्जिंग लेंस में कि अगर लाइट पैरेलल जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे. तो ये ध्यान में रखना, और ऐसे ऐसे. क्लियर? तो ये तीनों 3 फार में आया था एग्जाम में, बोर्ड में 3 मार्क्स में. ये रे डायग्राम बनाना था. और जैसे एक उसमें 2-3 सेट होता है ना, दूसरे सेट में दे दिया था कॉन्केव लेंस को डाल दिया जाए
तो कॉनकेव लेंस में भी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा तो ऐसे बनेगा, ध्यान में रखना, ऐसे ऐसे जा करके कॉन्वेक्स का नेचर ऐसा कन्वर्जिंग नहीं है, लेकिन वो कन्वर्जिंग बिहेव करेगा कब? जब हाँ ये स्थिति होगी। और यह प्लेन शीट की तरह ऐसे ही बने बिहेव करेगा, ध्यान रखना। प्लेन शीट में तो एकदम ये भी ऐसे करेगा जब दोनों इक्वल होगा, लेकिन जब इस तरह की पोजीशन बनेगी तो काम करेगा। हाँ, दैट विल बिहेव एज ए डाइवर्जिंग, फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। डाइवर्जिंग कैपेसिटी कम, फोकल लेंथ दोनों के जो है बढ़ेगी, both focal length will increase. Is it clear to all? Yes, sir. So this is the importance of the lens maker formula. So if there are many questions which are asked on this basis, and after this we will study the lens formula and the prism, and tomorrow it will be finished. Hurry up, please. Stand up.